They are truly India's unsung warriors. Over the last many weeks and months, over the last year, in fact, you've seen doctors on television. You've seen doctors speaking. You've seen the big public spotlight on our hero doctors. And that is something that should happen because doctors must be thanked. But those who remain unsung, silently working behind the scenes, are India's nurses. That's right, nursing staff, who are the connective tissue and the muscle of our healthcare system. The people who are in the trenches of this COVID tragedy, saving lives every single minute. They are the most hardworking of our healthcare system, and this is their story. They're truly the unsung of the pandemic. Quietly, diligently, uncomplainingly saving lives. You rarely ever hear from them, and yet nurses are literally the lifeblood in India's devastating battle to save citizens from the COVID monster. Across hospitals, from big cities to the smallest government hospitals, nurses are the muscle, the connective tissue, the nervous system that fuels the business of saving lives. While doctors have rightfully received the spotlight of public gratitude and respect, nurses have remained unsung, functioning with uninterrupted sincerity behind the scenes. The first that a COVID-ravaged India heard from this brave army of angels was from the nurse who administered a vaccine to Prime Minister Modi. सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। पूछताछ किए सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। But while she did get a rare bit of attention thanks to her high-profile patient, nurses in general have been happy to keep their heads down and work, giving up their nurse outfits for suffocating PPE kits that they must keep on all day and night. Nurses silently facing their own stresses, traumas, and continuous agonies. From the trenches of tragedy and hope, they fight, never demanding attention or laurels. But as the world's biggest exporter of nurses, it's time we recognize and honor them at every step. They're India's nurses, and they're saving our lives. Bureau Report, India Today. Joining me live, and it's a great honor this afternoon to have with us nurses from the trenches of the COVID war. You've never heard from them before because their voices are unheard, they remain unsung, they are silently fighting to save lives in COVID wards in different parts of the country. We've chosen nurses from some of the most affected areas. I want to welcome onto 5 Live today Biju Varghese, who is a nurse at the Fortis Hospital in Gurgaon. Shaista Nigar is a nurse at the Jaipur Golden Hospital in Delhi, which was recently in the news for running out of oxygen. Sakshi Srivastava is a nurse at the Metro Hospital in Delhi. Anju K.A. is a nurse at the Umkal Hospital in Gurgaon. Welcome to all of you. Thank you very much for being with me. This is a difficult time, I know, for all of us. Sakshi, if I can start with you, आपसे मैं शुरू करूंगा। आप मेट्रो हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप कोविड वार्ड में काम करते हैं, कैसा रहा है साक्षी जी आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि नर्सेज से we very rarely hear the stories of nurses, madam. We only hear from doctors. What has your experience been like? कैसा रहा इस कोविड का एक्सपीरियंस, especially इस सेकेंड वेव में? जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, ऊपर इंडिया में ऑक्सीजन की कमी बहुत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है पेशेंट के पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेशेंट सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पेशेंट को, और हम लोगों को भी घर में जाने में भी दिक्कतें हैं, घर में सबको प्रॉब्लम्स हैं। Biju, what has your experience been like? You've been a nurse for many years. Nobody had foreseen how difficult things are going to be.
Biju, you are also a nurse in a big hospital. What is your experience been like, Biju? Yeah, yes, I am from the Fortis Memory Research Institute, Gurugram. And it was just like a war against a virus. And we are just like soldiers in front of all these people, those who are just dying. And we do not know. Sometimes we feel that we are helpless. And in front of us, the struggle, turmoil, as well as the tears and the loved ones cry, everything makes us emotionally in crisis. That's the main thing. And in the night, we are unable to sleep even, because always our ears and our eyes are filled with this high cry, as well as the pain, as well as people are struggling for oxygen. Though they are getting oxygen in my hospital, sufficient amount, but they are unable to receive that one. And they are struggling just like a fish out of water. And this makes us, our heart, we are always, we like to just empathize with the patient. But now, I do not know, something in my heart also, the empathy also is, sympathy also is coming into that. And we find very difficult crisis rather than the last scenario. This kind, we are not planned of. And a sudden moment, just like a day, it is just like a mushroom, it came into on us. And we just started on a heel. Just now I just finished my duty and I just came only for this one. And till now the requirement of me is there in my ICU. Yes. Shaista ji, welcome. Also, you are also a nurse. You are also in a COVID ward. And I would like to tell our producers, please keep all my guests on the frame. I want to see all of these faces because all of these faces need to be honored today. Shaista ji, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कुछ ब्रेक भी मिला है आपको? हमको रोज देखने में मिलता है कि कितने लंबे लाइंस हैं हॉस्पिटल्स के बाहर. What is your experience, Shaista ji? You are also a nurse in a COVID ward. मैं नर्स हूँ 100%. और मेरा एक्सपीरियंस अभी 33 इयर्स से ज़्यादा ही है. और आउटसाइड मैंने आर्मी में भी काम किया 10 इयर्स एंड डिफरेंट हॉस्पिटल ऑल्सो. और अभी मैं जयपुर गोल्डन में हूँ 8 साल से. पूरी लाइफ में मतलब कभी इस तरह से कोई डिजास्टर नहीं देखा जो फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में हुआ जी. और कोविड एक्सपीरियंस लास्ट ईयर का तो है ही हम लोगों को. पर जो बीच में हमारा ये गैप आया कि थोड़े से कोविड पेशेंट कम हुए और ये सारी चीजें, तो सब लोग बहुत रिलैक्स हो गए. और जो सेकंड ये वेव आई तो बहुत जबरदस्त, और इसमें बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास आए जिसमें मतलब सडन आउटब्रेक हम कह सकते हैं. और जिसमें हमारी बहुत स्टाफ भी उनको भी हो गया. और लेकिन फिर भी ये है कि हम मैनेज कर पाए उन्हें और कर रहे हैं अभी भी. लेकिन इन पेशेंट को मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इनके साथ अटेंडेंट नहीं होते हैं, अकेले होते हैं रूम में. और स्टाफ को भी हमें मोटिवेट करना होता है क्योंकि पूरे टाइम ये स्टाफ, मेरे जो हमारी स्टाफ हैं कहीं की भी हैं, वो पूरा टाइम वार्ड के बीच में, उनके बीच में रहती हैं. और पूरा अपने आप को कवर करके कि उनका खुद का भी सैचुरेशन डाउन हो रहा होता है क्योंकि डबल ट्रिपल मास्क उनको बांधने होते हैं. तो जी. और फिर ये होता है कि हम लोग भी विजिट पे उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टाफ को हमें भी विजिट करने ही होते हैं. और 1-to-1 हम अपनी स्टाफ नर्सेस से प्लस अपने पेशेंट से भी मिलते हैं जी. तो कोविड का जो अभी है वो बहुत बुरा हाल है और इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और ये सब हमें करना होता है. और अभी जैसे आपने देखा, in fact I'm going to ask you about that also, about the psychological stress जो आप सहते हैं रोज आपके काम के वजह से, जो आप ट्रॉमास आप डायरेक्टली फर्स्ट हैंड विटनेस करते हैं. अंजू जी, टू यू ऑल्सो वेलकम. यू आर इन द उमकल हॉस्पिटल गुड़गांव में आप नर्स का काम करते हैं. अंजू जी, आपका फर्स्ट हैंड क्या एक्सपीरियंस है? कैसे बदल गया है आपका वर्क, आपका काम, आपका जिंदगी कैसे बदल गया इस कोविड का सेकेंड वेव में?
हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, जो पेशेंट को और अटेंडर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से, इवन एजुकेटेड जो लोग भी हम लोग को आके जो आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनके साथ रहना बोलते हैं, ये जो पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उन लोगों को भी देना है और अटेंडर को भी देना है, ये सब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ये फेस कर रहे हैं। उसके ऊपर से जो स्टाफ है उन लोग भी 12 अवर्स जो 24 अवर्स कंटिन्यूस पीपीई डाल के वो भी मैनेज कर रहे हैं। वो सब के लिए सबसे साक्षी जी, अगर आप कंपेयर करोगे, इफ यू आर टू कंपेयर कि ये कोविड का एक्सपीरियंस कैसा है कंपेयर टू जो आपके रूटीन ड्यूटीज जो थे कोविड के पहले, आप कैसे कंपेयर करेंगे? हाउ विल यू कंपेयर द टू? रूटीन ड्यूटी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, ना ही ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आते थे। कोविड के टाइम पे इतने क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं कि समझ नहीं आता कि कितना करना है। स्टाफ को भी मोटिवेट करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि स्टाफ जल्दी से कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के लिए एग्री नहीं होता। स्टाफ को भी मोटिवेट करना है, हमें पेशेंट को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। पेशेंट्स भी इतने घबरा जाते हैं कि खुद से कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग को उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छे से देना पड़ता है, तब जाके ये कोविड वाली ड्यूटी बहुत टफ रही है लास्ट ईयर, और इस साल भी बहुत ज़्यादा ही टफ रहा है ड्यूटी। Shaista ji, India is considered one of the biggest exporters of nurses. We have one of the strongest nursing communities. How are nurses coping with this with the pressure of the COVID second wave, ma'am? Because from our perspective, from the public perspective, ये एक non-stop नौकरी है. There is no break. There is no time for family. There is no time for personal life. And nurses are overburdened with work. How are you coping with so much work? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नर्सेज इंडिया की हैं, लेकिन हमें अभी नर्सेज की भी शॉर्टेज होने लगी है। तो वो बीमार हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ बाहर जा चुकी हैं, और इनकी क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो न्यू ट्रेनिंग स्टाफ मिलने भी मुश्किल हो रही है। जो सीनियर हैं उनके ऊपर डबल वर्क हो गया है। तो उसमें क्या है कि जो 6 आवर्स ड्यूटी है उन्हें कभी कभी 12 आवर्स ड्यूटी भी करनी होती है। और आप देख लीजिए कि डर तो उन्हें भी रहता है कि हमें भी हो गया तो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं उनको भी हो जाएगा, तो एक उनके अंदर भी फियर रहता है हमेशा। करेक्ट। तो उस फियर को भी निकालना होता है, और उनका मतलब डाइट पैटर्न और ये सब कुछ ही उन बच्चों का चेंज हो जाता है कि वो प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान भी नहीं रखते हैं, और हमें फिर फोर्स करना पड़ता है कि भाई 10 मिनट्स ले लो, ब्रेक ले लो, कुछ ना कुछ खा लो। तो इस तरह से उनका मोटिवेट भी हम करते रहते हैं कि भाई आप घबराओ नहीं, अगर पूरी प्रिकॉशन लेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो पर ये होता है कि प्रिकॉशन लेना मतलब ट्रिपल मास्क अगर आप बांध रहेंगे, डबल मास्क, और इतने सीरियस और पॉजिटिव केसेस आपके पास हो तो मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, और स्टाफ शॉर्टेज हो जाती है, जो कि ड्यूटी पर भी बहुत से पेरेंट्स तो भेजना भी नहीं चाहते। और मैं बल्कि पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो अपने इस लड़कियों को, स्टाफ नर्सेज को ड्यूटी पर भेज पा रहे हैं, वरना बहुत से लोग तो घर में ही बैठ गए हैं। और आज वो मेरी स्टाफ जो ड्यूटीज कर रही हैं यहाँ पर जी, तो आई एम थैंकफुल टू माय स्टाफ ऑल्सो कि वो डबल ड्यूटी भी विलिंगनेस से कर रही हैं। कोई उन्हें हम फोर्स नहीं करते, लेकिन जब वो देखती है पेशेंट की सफरिंग, दे फॉरगेट एवरीथिंग कि नहीं हमें ये करना है, और वो अपने आप से ही डबल ड्यूटीज कर लेंगे, हम एक्स्ट्रा नाइट कर लेंगे, हम छुट्टी नहीं लेंगे, खाना भी खाया नहीं खाया, मतलब ये सारी चीजें उनकी होती हैं। लेकिन ये कि जब वो इतना करते हैं तो हमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए करना होता है, एंड वी ट्राई टू मोटिवेट देम। पेरेंट्स से भी कभी कभी बात करनी पड़ जाती है, पेरेंट्स ऑल्सो दे आर सेंडिंग। तो आई एम रियली थ्रू आपके माध्यम से मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो मेरी नर्सेज के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं या हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो उनके रिलेटिव्स यहाँ आ रहे, रियली अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। yes. स्टाफ के लिए उनका
बैकअप जो पेरेंट्स का है और जो सपोर्ट है अगर वो नहीं मिलेगी, प्लस बिजू, हम तो देते ही हैं जो Biju, you know, even with all the support, even with all the strength that we have in terms of nursing, even that is not enough because this is such a big problem. How are nurses like you coping with the work pressure and the work stress? Because this is a problem. This COVID ka second wave jo hai, it is almost unending. It is going to become even bigger. The numbers say that, you know, the peak will come sometime in mid-May, where the numbers might be 3 or 4 times even more than what they are right now. How do you mentally prepare for this work? So, it's only a dream that because I can just tell you that when I have a shutdown, everywhere it is happening. Same model, the recruitment also is very restricted. You know that nowadays the people are not coming to the hospital for the new recruitment. In case if we are just taking a new training, the burden will be coming upon the experienced staff, as all other nations have been said. And we are just hoping that one till the last birth we have to fight and we have to help other people, and we don't have any future and we cannot just sustain. That we make ourselves healthy, maximum precaution we just take. And the fear that is there among the new joinees, new staff, that has to be vanished through counseling. That we are just maximum doing. And we know that one now presently the scenario is being just like a pressure cooker. And at any time it can be just burst out. And the resources in our hand is very less, just like an oxygen. When most of the people one by one, just in like a war field, they are just going into the quarantine. And we are just getting the shortages there, and the replacement will be very late. If one who is just going for the quarantine, or they are getting any sick, they will be just going for the RT-PCR. Again, they have to just wait till the results have to come. And after that only they will be able to join there. And that also, we are also finding it very difficult when we just think about the tomorrow. Yes. What will be just going to happen when we fall, and who will be there? You know that when there is doctors also is getting COVID, and they will be isolated, and through the video call and the conference, we are just meeting and getting the instructions, and we are running from one side to next side. That means if we are just starting at 8 o'clock, we are just running from one patient to another patient, counseling, giving medication, and they are also afraid because the fear is always there with them. When they are not getting the oxygen, when they are not able to breathe, and they just get spasm, and patient is, we are just receiving the patient like that. They will be just coming with the low amount of oxygen requirement. Yes. But when they just come slowly, what they will be just doing that they will be on to the high requirement of oxygen. Yes, absolutely, absolutely. I mean, and we've seen so many deaths happening over the last few days. Sakshi ji, you know, ये एक reality है कि एक nurse की जिंदगी में, you know, death एक reality है. आप death रोज देखते हैं, आप suffering, you know, patients का जो pain है, suffering है, death है, आप रोज देखते हो. लेकिन ये COVID के काल में एक मतलब इट्स कंप्लीटली न्यू. नंबर्स इतने बढ़ गए हैं, आप रोज पता नहीं कितने डेथ्स देखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं. आप टीवी पे अगर आप देखोगे तो इतने लंबे लाइंस लगे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर. ये सब देख के आपको कैसे लगता है, आप कैसे हैंडल करते हैं साक्षी जी? बहुत बुरा फील होता है ये सब देख के. हमें ऐसा लगता है जिसको हम लोग बचा भी सकते हैं शायद वो भी नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल केसेस ही इतने क्रिटिकल होते हैं. लोग जब लास्ट स्टेज हो जाता है, जब हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं पेशेंट्स को, और अगर उस टाइम बेड नहीं मिल पा रहा है या ऑक्सीजन वगैरह की कमी है, तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, स्टाफ भी इतना मतलब परेशान हो जाता है कि कोशिश बहुत करते हैं बट नहीं हो पाता है. क्राइसिस बहुत ज़्यादा है. क्या साक्षी जी, क्या हॉस्पिटल्स में लोग गुस्सा हो जाते हैं? कभी कभी हम इंसिडेंट्स देखते हैं कि लोगों के परिवार, यू नो, दे गेट एंग्री, वो चिल्लाते हैं, नर्सेस के ऊपर चिल्लाते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ मारपीट भी हुई है. ये सब भी एक रिस्क है, ये सब भी इस हालात में एक डेंजर है. बहुत ज्यादा डेंजर है. हम लोग को इस चीज को भी बहुत, हमारा मैनेजमेंट हमें इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट करता है. सब हर एक चीज देखनी पड़ती है. डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब लोग को इस चीज को बहुत
समझना पड़ता है, क्योंकि अटेंडर कभी भी हाइपर हो जाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव कभी भी हाइपर हो जाते हैं कि हमारे पेशेंट को क्यों नहीं देखा, हमारे पेशेंट को क्यों नहीं देखा। पेशेंट्स इतने आ रहे हैं जिसकी कोई वो नहीं है, बेड नहीं है, फिर भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हमें हर एक चीज़ इमरजेंसी में देखने पड़ते हैं। पेशेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें कुछ नहीं पता होता, बट हमें हर तरह के पेशेंट देखने होते हैं। और Shaista ji, it is a nurse's job to make the patients feel better, to make them feel, that there is hope for their loved ones. But in this terrible time, Shaista ji, people's emotions are also running high. How do you, as a nurse, balance between the two? You have to keep your own mental peace, but you also have to reassure the families at a time when they may be losing their loved ones. How do you do that? सर बिल्कुल, हमें उनको जो हम उनसे मिलते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि इस वक्त वो ज़्यादा हमसे डिमांड करते हैं, क्योंकि अटेंडेंट है नहीं उनके पास और सिवाय नर्सेस के उनको काउंसलिंग करने वाले कोई नहीं है। तो उस केस में हमें कुछ ज़्यादा ही एफर्ट उनके साथ करने होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको 1-to-1 हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो हमारी इंचार्जेस होती हैं, फ्लोर इंचार्जेस, वो अलग से उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनसे 1-to-1 मिलती हैं। स्टाफ भी छोटी छोटी लड़कियां हैं, अभी जस्ट पास आउट 1 ईयर 2 ईयर, वो भी इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि उनको मतलब बहुत मैच्योर वे में उनको मतलब सपोर्ट देती हैं और बहुत पेशेंस मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि जरा सा भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया, स्टाफ के मुंह से निकल गया। वैसे नर्सिंग जो है ज्यादा बोलती नहीं है, सिवाय काम के और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। कुछ गाली भी दे जाए तो वो कुछ नहीं बोलती है। हम भी उनको बोलते हैं कि इस वक्त ये ट्रॉमा में है और इस वक्त ये बीमार है, तो कोई बात नहीं, सुनना है हमें, कोई नहीं, बाद में वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट तारीफ करके नहीं जाते, और वो भी क्योंकि लास्ट ईयर का जो वो देख रहे थे, तो हमारे कुछ पेशेंट थे, उन्होंने बोला हाथ जोड़ के मतलब वाकई सैल्यूट कर रहे थे स्टाफ नर्सेस को कि मैडम इतने अच्छे से ये बच्चे देख रहे हैं। ये पहले हमने देखा था कि ऐसे चीजें जो थी फेंक के दे रहे थे अपने पेशेंट को, जैसे बंदर को रोटी डाल देते हैं, लेकिन ये तो कितना क्लोज होके हमसे हमारे सारे काम करें। और सबसे क्लोज मेरी जो भी कहीं की नर्स है वो मेरी नर्स है, तो वो बिल्कुल इतना करीब होके उनसे बात करती है, उनको आज भी टच करके, ये नहीं कि इन्फेक्शन हो जाएगा। 100% दे आर टेकिंग। अंजू जी, आप अपना खुद का जो मेंटल पीस है, मेंटल काम है, आप कैसे कंट्रोल करते हैं जब पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप आपका काम चलता है, तो आप अपना खुद का मेंटल पीस कैसे मेंटेन करते हैं? उसके लिए हम लोग खुद मेंटली प्रिपेयर करके सुबह से तो ड्यूटी पे आते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली आई एम फ्रॉम साउथ, तो मेरा छोटी जो 8 साल का बच्चे को छोड़ के मैं इतना दूर आके काम कर रहा था, तो वो हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो हम उसी टाइम कुछ भी हमारा दिमाग में नहीं आएंगे, ओनली पेशेंट्स केयर आएंगे। बाकी जो घर का सारा काम छोड़ के, इवन फैमिली में कोई बीमार है तो भी तभी भी हम लोग इवन ड्यूटी में ज्वाइन करने के टाइम ये सब कुछ भी हमारा मन में नहीं आते। ओनली पेशेंट्स, जो हमारा सामने कौन है जो फेस कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम हमारे फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग देख के ये करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये तो सबसे बड़ा तो हम लोग खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा इमोशंस जो दूसरा को देके हम कुछ भी सोचना नहीं है, और जो हमारा इमोशंस जो हमारा सामने जो लोग है उससे भी बहुत कम सोच के हम लोग काम करना पड़ेगा। ये सिचुएशन तो ऐसी है, तो हम लोग ऐसे हमारा इमोशनल कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साथ में हमारा जो भी स्टाफ है उनको भी हम प्रमोट करके ये जो सारा एक्सप्लेन करके हम लोग हर दिन ऐसे करना पड़ेगा। तो अंजू जी, ये आप बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में इमोशंस एक लग्जरी बन चुका है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इमोशंस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, वो सब साइड पे रखा गया। अब हमारे इमोशन अभी हम एक साइड में रखा है, क्योंकि बाकी जो लोगों का इमोशन देख के हमारा इमोशन 0 बन गया है अभी। तो इसलिए तो बाकी जो लोगों का इमोशंस को हम इम्पोर्टेंस देना है, एक टाइम ऐसे है, इसलिए तो हम लोग बाकी जो हमारे सामने कौन है उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने का टाइम है। साक्षी जी, ये एक रियलिटी है
कि नर्सेज के जिंदगी में मतलब इस काल में, इस कोविड काल में, स्पेशली ये सेकेंड वेव में, पर्सनल लाइफ का कोई टाइम ही नहीं है। पर्सनल लाइफ के लिए, इमोशंस के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, सिर्फ काम ही करते हैं आप लोग। फैमिली से पहले हम लोग हमारा काम देखते हैं, पेशेंट हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमने ये प्रोफेशन चूज ही इस तरह से किया है ताकि हम लोग पेशेंट की केयर कर सके। अगर हम लोग घर पे बैठ जाएंगे, फैमिली देखने लगेंगे, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना, फिर तो नर्सेज की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली देखेंगे, यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, हम उनको बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आया है तो वो सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए आया है, वो पूरा अपने आप को हमें दे देता, हमें सौंप देता है कि हम लोग उसकी केयर अच्छे से करें। वो पेशेंट केयर अच्छी मस्त होनी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग फैमिली, हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हम लोग भूल के जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते हैं तो सिर्फ हमें पेशेंट और पेशेंट केयर दिखता है और कुछ नहीं। अंजू जी, डॉक्टर्स फ्यू है, नर्सेज का इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होता है पेशेंट्स के साथ, वो जो इंटरेक्शन है वो नर्सेज के साथ ज्यादा होता है, तो एक अटैचमेंट बन जाता है। ये एक मुश्किल सवाल है अंजू जी, क्योंकि इतने सारे डेथ्स हुए हैं, इसका मतलब है कि आपका एक बॉन्ड बन चुका है सारे लोगों से उनके डेथ के पहले। आप इसको हैंडल कैसे करते हैं? आप इनके साथ दोस्ती करते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाता है कोविड वार्ड्स में भी, और उसके बाद कुछ लोग मर जाते हैं। ये आप कैसे हैंडल करते हैं? इसके लिए भी इमोशंस नहीं दिखा सकते आप? हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अभी इमोशंस किसी को भी, क्योंकि हम लोग जो ओल्ड एज वाला मम्मी पापा का तरफ है, जो बाकी एज वाला सिस्टर्स ब्रदर्स का तरफ है, तो आज जो देख रहे कभी कभी कल देख नहीं पा रहे क्योंकि उन लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग आ गया तो उन लोगों को मिलने के लिए हो गया, तो वो नहीं है। वो सबसे हमारा चैलेंजेस है, वो कंट्रोल, हमारा इमोशनल कंट्रोल करने के लिए। वो जो हमारा मम्मी पापा का तरफ हम लोग जो ट्रीट करने वाला लोग नेक्स्ट डे हमें छोड़ के चले गया, वो सेम फीलिंग से हम लोग जो पेशेंट्स के साथ भी जो अभी हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो इमोशन से हम लोग खुद कंट्रोल करके, बाकी जो पेशेंट को तो देखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम जो इमोशन सारा कंट्रोल करके बाकी पेशेंट्स को केयर कंटिन्यू करना पड़ता है अभी। शाइस्ता जी, आप पब्लिक से क्या बोलना चाहेंगे अभी? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द पब्लिक? क्योंकि कोविड का फर्स्ट वेव आ गया था, वो थोड़ा सा घट गया था, उसके बाद नाउ वी हैव दिस बिग सेकेंड वेव जिसमें देयर आर दिस ह्यूज नंबर ऑफ केसेस, ह्यूज प्रेशर ऑन हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे फ्रॉम अ नर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू? सर, मैं पब्लिक को यही, जो हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है, अगर वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले और घरों में रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकले, लाइक वेयरिंग मास्क, हैंड वॉशिंग, डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो मुझे लगता है कि काफी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, रास्ते में हम देखते हैं कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि मास्क के नाम पर वो एक दुपट्टा बांध लेते हैं, एक कपड़ा से लपेट लेते हैं। इससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, और ये ऐसा स्प्रेड होगा कि यू कांट कंट्रोल इट। तो लोगों को अपने घरों में कोशिश करें कि घरों में रहें कुछ दिन के लिए। अगर इस चीज को वो बर्दाश्त कर लेंगे और घर में रह लेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम चेन ब्रेक कर पाएंगे। अदरवाइज इसी तरह हम लोग कोविड पॉजिटिव होते रहेंगे, उसमें क्रिटिकल होते रहेंगे, और एक बार हम बीमार हो गए तो आगे भी रिकरेंट टेस्ट आपकी खराब हो गई है, आप कोई ना कोई इन्फेक्शन पकड़ते रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो यही है कि अगर, और आप इतने नजदीक से काम करते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, तो वो रिस्क हमेशा ऑलरेडी है, बहुत एक्टिव रिस्क है। अंजू जी, आप देखो, जब पब्लिक कुछ गलत करते हैं, कुछ कोविड रूल्स का वायलेशन उल्लंघन करते हैं, तो प्रेशर नर्सेज और डॉक्टर्स के ऊपर ही आता है, अल्टीमेटली आपके ऊपर ही प्रेशर आता है। तो आप पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे अब? हमें एक बोलना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्राउड सिचुएशन है, लाइक मैरिज एंड ऑल फंक्शंस अवॉइड करना है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसे है।
क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट वेव आ गया तो थोड़े से रिलैक्स हो गया था, उसका वजह से अभी सेकेंड वेव में इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इतना जो गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करना है। बाकी पीपीस जो ऑन ड्यूटी टाइम में भी सारा जो प्रिकॉशंस के साथ अगर हम लोग खुद जो प्रिकॉशंस करेगा, बाकी दूसरा लोगों को भी प्रिकॉशंस जो भी इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए तो जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट जो भी दिया है वो प्लीज फॉलो करो, और जो डिस्टेंस कीप करना है और हैंड वॉशिंग ये सब जो कंटिन्यूस फॉलो करना है, इसकी वजह से हम नेक्स्ट एक वेव अवॉइड कर सकते हैं। Sakshi ji, Anju ji, Shaista ji and Biju ji, 4 brave nurses from India's COVID trenches. मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ and thank you for giving us your time today. I know how busy you are and therefore it is a great privilege for me to bring your voices to our millions of viewers, because हमें पता है कि people hear from the doctors, they never hear from the nurses because the nurses are too busy. The nurses don't have a break, and whatever small break nurses have, they have to give to their own families. And therefore, I salute you. मैं आपको सलाम करता हूँ. Thank you very much. Please stay safe and all the very best. India Today will always be with you. Thank you so much for being with me here. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.